اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعہا لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال، یہ ان کے لیے ہے جو رضاعت کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے اس کا کھانا اور کپڑا اچھی طرح سے۔ اور یاد رکھو کسی شخص پر اس کی طاقت اور برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ کسی ماں کو تکلیف پہنچائی جائے اس کے بچہ کے باعث، اور نہ کسی باپ کو تکلیف پہنچائی جائے اس کے بچہ کے باعث۔ اور یہی حکم وارث کے لیے بھی ہے۔ بس اگر وہ دونوں باہمی رضامندی اور مشورہ سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر باہمی رضامندی سے تم اپنے بچوں کو کسی اور ذریعہ سے دودھ پلانا چاہو تو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ ادا کر دو جو دینا ہے اچھے طریقہ سے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، لغات القرآن کے مطابق یرضعن کا مادہ ہے رضا، جس کا لغوی مطلب ہے بچے کا ماں کے پستان کو چوس کر دودھ پینا۔ رضاعت کا شرعی اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ عورت کے پستان سے مدت رضاعت میں بچے کے پیٹ میں دودھ پہنچنا، خواہ بچہ خود منہ کے ذریعے دودھ چوسے یا کسی اور طریقہ سے اس کے پیٹ میں پہنچایا جائے۔ ناظرین، مدت رضاعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں مدت رضاعت کا تعین کر دیا ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال۔ اس کی تائید پارہ نمبر 21 سورۃ اللقمان آیت نمبر 14 میں بھی ہوتی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ شکم میں اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود، اور اس کا دودھ چھوٹنے میں 2 سال لگے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا رضاعت الا ما کان فی حولین، رضاعت صرف وہ ہے جو 2 سال کے اندر ہو، یعنی جس سے خون اور گوشت بنے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا رضاع بعد حولین کاملین، پورے 2 سال کے بعد رضاعت نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی مدت رضاعت پورے 2 سال ہی ہے۔ اسی طرح تمام ائمہ کرام کا رحمۃ اللہ علیہم اس میں اجماع ہے کہ مدت
रज़ात पूरे 2 साल ही है। बाद लोग हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बयान करते हैं कि उनके ख़्याल में मुद्दत रज़ात 2.5 साल यानी 30 महीने है। हालांकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने भी दूध छुड़ाने की मुद्दत 2 साल ही ली है। दरअसल 30 माह यानी 2.5 साल का अरसा ज़माना हमल मिलाकर है। पारा नंबर 26 सूरतुल अहकाफ आयत नंबर 15 में इरशाद बारी ताला है, हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदातहु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा। उसकी माँ ने अपने शिकम में उठाए रखा बड़ी मुशक्क़त के साथ और जना उसको बड़ी तकलीफ़ के साथ, और इसके हमल और उसके दूध छुड़ाने तक 30 महीने लगे। यानी उसका पेट में उठाना और उसका दूध छुड़ाना ज़माना हमल और रज़ात 30 माह पर मुश्तमिल है। ताहम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 2.5 साल तक दूध पिलाने का अरसा हुर्मत रज़ात के सिलसिला में है। मुद्दत हमल दरअसल क्या है? सूरह अहकाफ की जिस आयत का जिक्र मैंने अभी किया है, इससे अहले इल्म ने ये मसला मुस्तंबत किया है कि हमल की कम अज़ कम मुद्दत 6 माह है, क्योंकि ये 30 महीने हमल और दूध पिलाने की मजमूई मुद्दत है। सूरत बकरा की आयत नंबर 233 जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तिलावत की है, इसके तहत दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल मुतय्यन है। इसके बाद 6 माह बचते हैं और यह हमल की अकल मुद्दत है, यानी कम अज़ कम मुद्दत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना खिलाफत में एक औरत पेश की गई जिसने शादी के 6 माह बाद बच्चा जना। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके मुतल्लिक़ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मशवरा किया। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस पर कोई रजम नहीं, यानी उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। क्या आप रज़ी अल्लाह ताला ने मुलाज़ा नहीं किया कि अल्लाह ताला ने फरमाया व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, इसके हमल और फिसाल की मुद्दत 30 माह है। फिर फिसाल की मुद्दत के बाद बारे में फरमाया व फिसालुहु फी आमैन, दूध छुड़ाने की मुद्दत 2 साल है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को छोड़ दिया। कदीम इत्तबा भी यही तहकीक है। हकीम जालिनूस से मनकूल है कि मैं इस अमर की खोज में लगा रहा कि हमल की कम अज़ कम मुद्दत कितनी है, यहाँ तक कि मैंने एक ऐसी औरत देखी जिसने 184 दिनों यानी 6 माह 4 दिन में बच्चा जना। जदीद तहकीकात से भी ये साबित हो चुका है कि बच्चे को कम अज़ कम 28 हफ्ते यानी 196 दिन रहम में रहना पड़ता है। ये 6 माह और 16 दिन बनते हैं। दोनों का ये शुमार उस वक्त से शुरू होता है जब औरत हैज़ से फारिग होती है और उस तोहर का आगाज़ हो जाता है जिसमें हमल करार पाता है। ज़रूरी तो नहीं कि तोहर के पहले दिनों में ही हमल करार पाए, बल्कि जदीद तहकीकात से तो ये भी साबित हो चुका है कि आइंदा हैज़ से 14 दिन पहले 2-4 रोज़ के अरसा में अमल तलकी वकूल पजीर हो जाता है। इस तरह ये 16 दिन का फ़र्क भी नहीं रहता। हमल की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मुद्दत है, कुरान करीम में इसका जिक्र नहीं। अलबत्ता अबू अली सीना ने अपनी मशहूर किताब शफ़ा के 9वें मकाला में लिखा है कि मुझे नहायत बावसूख ज़रिया से मालूम हुआ है कि एक औरत के यहाँ हमल के 4थे साल बच्चा पैदा हुआ। उसके मुंह में दांत उग आए थे, फिर वो जिंदा सलामत रहा। अरसा तालीस ने कहा है कि दीगर हैवानात के लिए तो हमल की मुद्दत मुकर्रर है, लेकिन इंसान के बारे में यकीनी तहदीद मुश्किल है। नाज़रीन, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसमें क्या हिकमत है कि कुरान करीम ने दूध पिलाने की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत बयान की और हमल की कम अज़ कम मुद्दत।
इसका जवाब देते हुए लिखते हैं कि इसमें हिकमत ये है ताकि औरत से हर किस्म की तोहमत का सद्देबाब किया जा सके, ज़रर रसानी और फहाशी का अकल कमा हो सके। पाक है वो ज़ात जिसने इस किताब के हर कलमा में हज़ारों हिकमतें और लताइफ वदियत कर दिए हैं, जिसके अहाते से अक्ल आजिज़ है। नाज़रीन, जो गुफ्तगू मैंने अभी की है उसके पेश नज़र इसमें कोई शक नहीं कि दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल ही है, इससे ज़्यादा मुद्दत के लिए दूध पिलाने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता हुर्मत रज़ात के सबूत के लिए 2.5 साल की मुद्दत मुकर्रर है। हुर्मत रज़ात का रिश्ता एक मखसूस मुद्दत तक कायम होता है। दुर्र मुख्तार में ये सब लिखा है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसकी मुद्दत 2.5 साल है, और जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, साहिबीन यानी हज़रत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 2 साल है। लेकिन अगर दूध छुड़ाने के बाद भी किसी बच्चे ने औरत का दूध पिया हो तो उससे हुर्मत रज़ात साबित हो जाएगी और फतवा उसी पर होगा। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि साबित हुआ कि दूध पिलाने की मुद्दत मुकम्मल 2 साल के बाद तक है, क्योंकि बच्चे से यकदम दूध छुड़ाना मुमकिन नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि हुर्मत रज़ात की मुद्दत 2 साल से बढ़ाई जाए, जिसमें बच्चा आदतन दूध छोड़ने के अमल से गुजरता है। सो कभी उसकी ग़िज़ा दूध होता है और कभी दूसरी चीज़ें, यहाँ तक कि वो दूध को भूल जाए और कम अज़ कम मुद्दत में पूरी तरह दूध से दूसरी ग़िज़ाओं की तरफ मुंतकिल हो जाए, और ये मुद्दत 6 माह है। इस मुद्दत को कम से कम मुद्दत हमल पर क़यास करेंगे। नाज़रीन, सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बच्चे को 2 बरस तक दूध पिलाया जाए, उससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं। दूध पीने वाला लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए एक ही मुद्दत है। ये जो अवाम में मशहूर है कि लड़की को 2 बरस तक और लड़के को 2.5 बरस तक दूध पिला सकते हैं, ये सही नहीं है। यह हुक्म दूध पिलाने का है और निकाह हराम होने के लिए 2.5 बरस का ज़माना है। यानी 2 बरस के बाद अगरचे बच्चा दूध पिलाना हराम है, मगर 2.5 बरस के अंदर अगर दूध पिला देगी तो हुर्मत निकाह साबित हो जाएगी, और अगर इसके बाद पिया तो हुर्मत निकाह नहीं, अगरचे पिलाना जायज़ नहीं। लिहाजा इन दोनों मकामात पर एक तरह से अजमाल रह गया है, जिसमें अशकाल पैदा होता है। इस अजमाल की तफसील और वजाहत यह है कि मुद्दत रज़ात बिला शुबा 2 साल है, जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमा दी है। लेकिन चूंकि ये हलाल और हराम का मसला है, इसलिए फुक़हा इकराम रहमतुल्लाह अलैहिम ने बरबिनाए एहतियात हुर्मत रज़ात के सबूत के लिए 2.5 साल की मुद्दत मुकर्रर की है, क्योंकि जो बच्चे सिर्फ माँ के दूध से परवरिश पाते हैं उनका यकदम दूध छुड़ाना मुश्किल होता है। बच्चा दूध पीने की जिद करता है, यहाँ तक कि बाज़ औरतें बच्चे का दूध छुड़ाने के लिए एलोवेरा, मिर्च या कोई और कड़वी चीज़ लगाती हैं ताकि बच्चा दूध से मुतनफ़र हो जाए। यहाँ तक कि जो बच्चे फीडर के ज़रिए मसनूई दूध पीते हैं वो भी यकदम दूध नहीं छोड़ पाते। बस यही वजह है कि फुक़हा रहमतुल्लाह अलैहिम ने दूध छुड़ाने का वक्फ़ा मार्जिन पीरियड 2 से 2.5 साल तक रखा है। नाज़रीन, इंसानी हकूक़ में पहला हकदार नौमौलूद बच्चा ही है। इस्लाम में उनके हकूक़ का ख़ास ख्याल रखा गया है। जहाँ तक उन्हें दूध पिलाने का ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा मुद्दत के दौरान अगर बच्चे का बाप उसकी माँ को तलाक दे देता है और वो दोनों मियाँ बीवी
उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए बाहम रजामंद हों और रज़ात की मुद्दत यानी 2 साल मुकम्मल करना चाहते हों तो लिमन अरादा अन युतिम रज़ा वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन दूध बाप पर लाजम है कि इस दौरान बाप पर लाजम है कि वो बच्चे की माँ का नान नुफ़्का उठाए। व अलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, और जिसका बच्चा है उसके ज़िम्मा है उसका खाना और कपड़ा अच्छी तरह से, यानी बच्चे की माँ को रोटी कपड़ा और रहाइश अपनी ताकत के मुताबिक अहसन तरीका से मुआवजा के तौर पर मुहैया करे। अगर बच्चे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा ना हो तो बाहमी रजामंदी से दूध पहले भी छुड़ाया जा सकता है। बाहमी रजामंदी शर्त है, जिसका मतलब यह है कि माँ की मर्जी के बगैर उससे बच्चा अलहदा नहीं किया जा सकता और माँ भी बाप की मर्जी के बगैर बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। दोनों बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी परवरिश के जिम्मेदार है। नाज़रीन, बच्चों के हकूक़ के सिलसिले में ये आयत मज़कूरा जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, वाज़े होता है कि माँ का दूध पिलाना बच्चे का हक है। और गौर तलब बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला को ख़ास अपना दूध पिलाने यानी ब्रेस्ट फीडिंग का हुक्म देता है, जिसके लिए आजकल मेडिकल डॉक्टर्स भी तलकीन करते हैं। हकीकत यह है कि माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं, और इससे भी बढ़कर जब माँ गोद में लेकर छाती से लगाकर अपना दूध उसके मुंह में डालती है तो मोहब्बत और सुकून जो उस वक्त बच्चे को मिलता है वो उसकी शख्सियत साजी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मज़ीद ये कि अपना दूध पिलाने से बच्चों की पैदाइश में ज़रूरी वक्फा भी कुदरती तौर पर हो जाता है। नाज़रीन, अगरचे माँ का अपने बच्चे को दूध पिलाना फितरी तकाजा है, ये माँ की ममता है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला के नज़दीक माँ के बच्चे और बाप दोनों पर एहसान है और हुक्म दिया है कि मर्द इस एहसान का बदला दे। दूसरी तरफ बच्चों पर माँ का अदब एहतराम भी फर्ज कर दिया गया है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामुल उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है। नाज़रीन, नागुज़ीर हालात में मसलन जब माँ की सेहत इजाज़त ना दे या उसके ज़ाती मसाइल कुछ और हों कि वो दूध ना पिला सकती हो, तो फिर माँ बाप बाहमी रजामंदी और मशवरा से किसी दूसरी औरत से भी दूध पिलवा सकते हैं या कोई आया रख सकते हैं। चुनाचे फरमाया, फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादिम मिनहुमा व तुशावरिन फ़ला जुनाह अलैहिमा, और अगर बाहमी रजामंदी से तुम अपने बच्चों को दूध छुड़ाकर किसी और ज़रिया से दूध पिलाना चाहो तो तब भी तुम पर कोई गुनाह नहीं। खुसूसन बच्चों की तरबियत के लिए बाहमी रजामंदी और मशवरा मोमिनीन के फ़राइज़ में शामिल है। फिर फरमाया, वालल वारिस मिस्लु ज़ालिक, यही अहकाम वारिसीन के लिए भी हैं। इसका मतलब यह है कि अगर बाप ना हो, मसलन कहीं चला जाता है या फौत हो जाता है या अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से गुरेज करता है, तो फिर अल्लाह ताला ने बच्चों के हकूक़ का जिम्मेदार वारसों को करार दिया है और हुक्म फरमा दिया कि ख़बरदार बाहमी इख्तलाफात की वजह से जो तलाक के बाद अक्सर होते हैं, माँ और बच्चा के हकूक़ मुतासर ना हो। अगरचे बाहमी मशवरा से आया रखना जायज़ है, लेकिन माँ के हकूक़ फिर भी मुक़द्दम है, जिसके लिए ख़बरदार कर दिया गया है कि वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह ताला से डरो, जो कुछ तुम करते हो वो सब कुछ देख रहा है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम को समझने और उसको तलावत करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।